अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 8 इन अ टनल की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पार्ट ए है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वर द कैरेज विंडोज पुल्ड अप व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग थ्रू अ टनल? इसका आंसर है the carriage windows were pulled up when the train was going through the tunnel to prevent the smoke from the engine coming into the carriage. First, it is a steam train. Second, in old carriages, the window frames were pulled up and hooked up with a short leather strap. What kinds of things do you see in a tunnel when you are on foot? इसका आंसर है when you are on foot in a tunnel, you can see water dripping down the walls. The bricks are a dull, sticky, sickly green. The light from outside shines in for quite a long way. How many children were there in the tunnel? इसका आंसर है there were 3 children in the tunnel. Which child was the most frightened? इसका आंसर है Phyllis was the most frightened. Peter asked the other, and what's that? What is the that he refers to? इसका आंसर है Peter is referring to the noise of the train. What were the wires over which Phyllis stumbled? इसका आंसर है the wires are those which connect the points or signals to the signal box. How does the author describe the train hurtling by? इसका आंसर है with the words rush, roar, rattle, blast, hurtled, clanging, jangling, echoing, whiz. Why does Phyllis compare the train to a dragon? In what ways is it similar to a dragon? Do you think this is a good comparison? इसका आंसर है Phyllis compares the train to a dragon because it roars and puffs out smoke and fires like a dragon. Also, the train's lights look like eyes glowing in the dark. Part A में question number 2 है In your own words, explain what is meant by the following. आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं. आपने इनके meanings को explain करना है कि इनके मतलब क्या है. फर्स्ट है द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स. इसका आंसर है द वायर बिटवीन टू टेलीग्राफ पोल्स sags and then catches at the top of the pole. From a moving train, the wires seem to dip and rise. Second है straight cut hawthorn hedges. इसका मतलब है the hawthorn hedges have been clipped and trimmed to keep them neat and tidy. Third है sickly green. इसका मतलब है a green which is very pale like the skin color of a sick person. Fourth है half a yard of gathers. इसका meaning है the gathered material of a skirt where it meets the waistband, especially common in old fashioned skirts. पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 है सजेस्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग मीनिंग्स. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपने स्टोरी से ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मीनिंग इन वर्ड से मैच हो. जैसे कि फर्स्ट है अ लाउड नॉइज. स्टोरी में वर्ड है रोर. रोर का मतलब भी होता है ऊंची आवाज, तो हम इसका आंसर लिख देंगे रोर. सेकंड है टीयरिंग, means ripping. Third है pulled, means dragged. Fourth है quietness, means silence. Fifth है a person who is not brave, means coward. Next है tripped over, means stumbled over. Seventh है slowly, means gradually. Eighth है humming like a bee, means buzzing. Ninth है held on tightly, means clung. 10th है bright, means dazzling. 11th है moving forward, means advancing. 12th है moist and slippery, means slimy.
पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, केयरफुली रीड द लास्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी एंड पिक आउट ऑल द वर्ड्स फॉर साउंड्स एंड नॉइसेस। आपने इस स्टोरी के लास्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मिले हैं जो कि आवाजों से मुशाबिहत रखते हैं, आपने उन्हें लिख लेना है। कैन यू फिट 7 वर्ड्स इनटू द ग्रिड बिलो एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द पैसेज। आपको यहाँ पे एक ग्रिड दिया गया है, आपने उन वर्ड्स में से कोई 7 वर्ड्स चुन लेने हैं जो कि इन बॉक्सेस के अंदर बिल्कुल फिट आ रहे हों। जैसे कि पहली लाइन में बन सकता है नॉइस, सेकंड बन सकता है इकोइंग, नेक्स्ट है रोर, फोर्थ बन सकता है साउंड्स, रैटल, विज, क्लैंगिंग, जैंगलिंग। तो ये हमारे वर्ड्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने खुद लिख दिया हुआ है कि ये जो लंबी लाइन है इसमें एक वर्ड शाउटिंग बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपने इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, द चिल्ड्रन सॉ स्लाइमी oozy trickles डैश। इसकी ब्लैंक में आ जाएगा रनिंग डाउन द वॉल। द चिल्ड्रन सॉ स्लाइमी oozy trickles running down the wall। सेकंड है, एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट डैश। ब्लैंक में आ जाएगा when you are inside a tunnel। Everything is quite different when you are inside a tunnel। थर्ड है, the windows all dim with yellow smoke। ब्लैंक में आ जाएगा and moisture। The windows all dim with yellow smoke and moisture। फोर्थ है, it was not yet quite dash। ब्लैंक में आ जाएगा the time for lunch। It was not yet quite the time for lunch। फिफ्थ है, and now with a rush and a dash। ब्लैंक में आ जाएगा loud scream the train passed। And now with a rush and a loud scream the train passed। Question number 5 है, with the help of your dictionary find as many meanings as you can for each of the following words। Say whether they are nouns or verbs। आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनके काफी ज्यादा मीनिंग्स अपनी डिक्शनरी से ढूंढने हैं और ये भी बताना है कि क्या ये नाउन है या वर्ब है। फर्स्ट है विंग, जिसका मतलब है अ लिम्ब ऑफ बर्ड, ये नाउन है। या स्पोर्टिंग पार्ट ऑफ एन एयरप्लेन, ये भी नाउन है। या टू वाउंड समवन स्लाइटली ऑन द आर्म, ये भी वर्ब है। आप इनके ज्यादा से ज्यादा 3 मीनिंग्स लिख लें, वो भी काफी हैं। नेक्स्ट है साइट, मीन्स बीइंग सीन, ये नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है स्पेस, विद इन विच ऑब्जेक्ट और पर्सन कैन बी सीन, ये भी नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है शो या स्पेक्टिकल, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है टेक ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक वर्ब है। थर्ड है पाउंड, इसका मतलब है a measure of weight 2.2 pounds equal 1 kg। इसका मीनिंग है enclosure for stray animals, ये नाउन है। या crush as with a pestle, ये एक वर्ब है। या walk or run heavily, ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट है foot, इसका मीनिंग है end part of leg beginning at the ankle, ये नाउन है। या step, pace, tread, ये भी एक नाउन है। या यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट है मैच, इसका मतलब है पर्सन इक्वल टू एन अदर इन सम क्वालिटी, ये एक नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्टेस्ट ऑफ स्किल, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है टू पेयर वन थिंग विद इट्स इक्वल, ये एक वर्ब है। लास्ट है रेस, इसका मतलब है टू compete इन स्पीड विद, ये एक वर्ब है। या ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स कनेक्टेड बाय कॉमन डिसेंट, ये एक नाउन है। या रूट ऑफ जिंजर, ये भी एक नाउन है। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।